नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा सिंह और ये है मॉक टेस्ट 10 यूजीसी नेट जेआरएफ या स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट एनवायरमेंटल साइंसेज के लिए। सो लेट्स स्टार्ट मॉक टेस्ट 10 फॉर यूजीसी नेट जेआरएफ and state level eligibility test of environmental sciences. This test has 20 questions which have been previously asked in different UGC NET exams. So let's start. Question number 1. With respect to the sea, increases in CO2 abundance is not responsible for which of the following? A. Increase in pH of seawater. Clearly, when there is more CO2, there will be the formation of carbonic acid in the seawater. And formation of acid leads to decrease in pH and not increase. So A is the correct answer. This is not related to increase in CO2. Okay? Coral bleaching happens because of increase of CO2. Enhanced dissolution of calcareous materials also happens because of CO2. Because CO2 leads to formation of carbonic acid and water turns acidic, pH reduces, and calcium dissolution happens. Increase in concentration of bicarbonate ions. This also happens because of CO2 increase. The only thing that doesn't happen is increase in pH because the pH decreases when CO2 increases due to formation of carbonic acid. Question 2. Match the following water types with their respective conductivities. Okay. So match the following के लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग तोड़ है कि सारे आंसर्स आपको नहीं पता पर कोई एक आंसर जिसमें आप श्योर हैं। जैसे कि मैं ये जानती हूँ कि जो ऑर्गेनिकली एनरिच्ड वाटर होता है उसकी कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, जो कि डी की कंडक्टिविटी होगी मोर देन 500 विच इज 1. सो कौन सा ऑप्शन है जहाँ पे डी को ए के साथ 1 के साथ मैच किया हुआ है? ऑप्शन ए. So clearly this is the correct option because D has been matched with A. Organically enriched water has the maximum conductivity, which is 1. So D has been matched with 1 in option A. So this is the correct answer. Okay. And you can memorize all of this regarding conductivity ranges for different kinds of water. But the correct option here is A. Okay. Next, let's go to the next question. With regard to drinking water sources, without conventional treatment but after disinfection, water parameters and the permissible values are given in the list below. तो conventional drinking water treatment नहीं हो रहा है, सिर्फ drinking water को सोर्स से लेके उसको डिसइंफेक्ट कर दिया गया है। और तब कौन कौन से पैरामीटर्स का परमिसिबल लिमिट क्या होना चाहिए? टोटल कॉलीफॉर्म ऑर्गेनिजम्स MTN per 100 ml. तो clearly this option is less than 50 per 100 ml. This is the correct option. So A has to be matched with 2. So option A is matched with 2. This is the correct option. pH has to be between 6.5 to 8.5. That is B has to be matched with 1. So again, B is matched with 1. BOD at 20 degrees Celsius should be less than 2 milligram per liter. So again, this is the correct option. D has to be matched with 3 and DO should be 6 milligram per liter or less. That's okay. 4 to 6 actually. So C has to be matched with 4. So clearly A is the correct option. Total coliform content जो होना चाहिए वो हमेशा 50 से कम होना चाहिए per 100 ml. तो A का मैच होगा 2. pH जो होना चाहिए वो 6.5 to 8.5 के बीच में होना चाहिए. तो B का मैच होगा 1. अगर आपको ये दोनों ऑप्शंस भी आते हैं तो भी ऑप्शन ए है जहाँ पे A को 2 के साथ मैच किया गया है और B को 1 के साथ मैच किया गया है. मुझे सारे ऑप्शंस पता है तो DO जो होना चाहिए वो 4 to 6 मिलीग्राम पर लीटर तक होना चाहिए. तो C को 4 के साथ मैच होगा यहाँ पे और BOD को हमेशा 2 मिलीग्राम पर लीटर या उससे कम होना चाहिए. तो D को 3 के साथ मैच किया जाएगा यहाँ पे. ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है. ठीक है. Question 4. A stream with flow rate of 5 meter cube per second meets another stream with the same flow rate. The concentration of phosphate upstream to the junction is 10 milligram per liter and that of the other stream is 5 milligram per liter. What will be the downstream concentration of phosphate? तो एक स्ट्रीम आ रही है, उसका जो डिस्चार्ज का रेट है वो 5 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड है और दूसरी स्ट्रीम आ रही है उसका डिस्चार्ज का रेट भी 5 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड ही है. जो पहली स्ट्रीम है उसमें फॉस्फेट का कॉन्सेंट्रेशन अपस्ट्रीम मतलब जंक्शन से पहले मिलने से पहले 10 मिलीग्राम पर लीटर है और दूसरी स्ट्रीम का फॉस्फेट का कॉन्सेंट्रेशन 5 मिलीग्राम पर लीटर है. तो जो डाउनस्ट्रीम कॉन्सेंट्रेशन होगा फॉस्फेट का वो कितना होगा?
तो इसका जवाब तो एक बहुत ही आसानी से निकाला जा सकता है कि दोनों स्ट्रीम का फ्लो रेट सेम ही है, तो कॉन्सेंट्रेशन को क्या करेंगे, 10 मिलीग्राम प्लस 5 मिलीग्राम पर लीटर डिवाइडेड बाई 2, तो 15 डिवाइडेड बाई 2 7.5। तो ये बहुत आसानी से, जिनका मैथ्स थोड़ा भी ठीक है उनको पता है कि 7.5 इसका आंसर बहुत आसानी से होगा। लेकिन जिनको ये मैथ्स क्लियरली नहीं समझ में आता उनके लिए मैंने एक बहुत डिटेल्ड आंसर इसका बनाया है। सो लेट्स लुक एट द डिटेल्ड solution of this question, and you will never forget this kind of question after this. Flow rate of stream 1 क्या है, 5 cubic meter per second. Flow rate of stream 2, दूसरे stream का flow rate भी 5 cubic meter per second है। हम जानते हैं कि 1 cubic meter जो होता है वो 1000 liter of water होता है। Thus the flow rate of streams 1 and 2 is 5 into 10 into 1000, that is 5000 liter per second. तो स्ट्रीम 1 और स्ट्रीम 2 दोनों का फ्लो रेट 5000 लीटर पर सेकेंड है। अब हमने इसको क्यूबिक मीटर को लीटर में क्यों कन्वर्ट किया है बहुत जरूरी है, आगे देखते हैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फॉस्फेट अपस्ट्रीम फॉर स्ट्रीम 1। स्ट्रीम 1 में फॉस्फेट का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, 10 मिलीग्राम पर लीटर, क्योंकि यहाँ मिलीग्राम पर लीटर में है तो हमने स्ट्रीम का डिस्चार्ज भी लीटर में कन्वर्ट कर लिया है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फॉस्फेट अपस्ट्रीम ऑफ स्ट्रीम 2, और जब दोनों स्ट्रीम मिलती है उसके पहले उसके अपस्ट्रीम स्ट्रीम 2 में फॉस्फेट का कॉन्सेंट्रेशन क्या था, 5 मिलीग्राम पर लीटर था। टोटल फॉस्फेट स्ट्रीम 1 में क्या होगा, तो 1 लीटर में 5 मिलीग्राम है स्ट्रीम 2 में, और 1 लीटर में 10 मिलीग्राम फॉस्फेट है स्ट्रीम 1 में। तो टोटल फॉस्फेट क्या होगा स्ट्रीम 1 में, 5000 लीटर जो कि डिस्चार्ज है इंटू 10 मिलीग्राम पर लीटर है, तो होगा 5 इंटू 10⁴ मिलीग्राम। इतना फॉस्फेट है टोटल स्ट्रीम 1 में अभी तक। और फॉस्फेट स्ट्रीम 2 में कितना होगा, तो उसका डिस्चार्ज भी 5000 लीटर है इंटू 5 मिलीग्राम पर लीटर जो कि फॉस्फेट का कॉन्सेंट्रेशन है। तो 1 लीटर में 5 मिलीग्राम है, तो 5000 लीटर में कितना होगा, 2.5 इंटू 10⁴ मिलीग्राम। तो इतना मिलीग्राम फॉस्फेट स्ट्रीम 2 में है। तो स्ट्रीम 1 में टोटल फॉस्फेट, स्ट्रीम 2 में टोटल फॉस्फेट हमने कैलकुलेट कर लिया। अब डाउनस्ट्रीम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फॉस्फेट क्या होगा, तो टोटल अमाउंट ऑफ फॉस्फेट जो कि स्ट्रीम 1 और स्ट्रीम 2 में है डिवाइडेड बाई टोटल अमाउंट ऑफ वाटर जो कि स्ट्रीम 1 और स्ट्रीम 2 में है, तो क्या होगा, टोटल अमाउंट ऑफ फॉस्फेट कितना होता है, 5 इंटू 10⁴ मिलीग्राम जो कि स्ट्रीम 1 में फॉस्फेट है, प्लस 2.5 इंटू 10⁴ मिलीग्राम जो कि स्ट्रीम 2 में फॉस्फेट है। इन दोनों का प्लस डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर इन स्ट्रीम 1 दैट इज 5000 लीटर प्लस स्ट्रीम 2 5000 लीटर which is 7.5 into 10⁴ milligram divided by 10⁴, that is 10,000. Okay, तो अब आंसर हो गया 7.5। तो ऐसे ही हम जब भी कोई डिस्चार्ज का क्वेश्चन हो कि पहले स्ट्रीम में इसका डिस्चार्ज इतना है और उसमें कॉन्सेंट्रेशन इतना है, दूसरी स्ट्रीम में डिस्चार्ज इतना है कॉन्सेंट्रेशन इतना है, तो पहले आप टोटल कॉन्सेंट्रेशन पता करेंगे दोनों स्ट्रीम का और फिर टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर पता करेंगे, और टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी सॉल्ट डिवाइड बाय द टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो वही आंसर होगा। ठीक है, इसको आराम से समझ लीजिए वीडियो को पॉज करके। और अभी मैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ रही हूँ। ओके, क्वेश्चन 5, assertion at a constant temperature the solubility of ammonia in water increases with the decrease in pH। तो जब पानी का pH डिक्रीज होता है मतलब एसिडिक होता है तो अमोनिया का कॉन्सेप्ट की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। ओके, रीजन द सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑल गैसेस इंक्रीज विथ डिक्रीज इन पीएच। जितनी भी गैसेस हैं उन सब की सॉल्युबिलिटी पीएच के घटने से बढ़ जाती है। तो क्लियरली क्वेश्चन जो असर्शन ए है वो तो सही है लेकिन आर सही नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर गैस का सॉल्युबिलिटी जो है वो पीएच के डिक्रीज होने से बढ़ जाए। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अगर पानी में ऑलरेडी बहुत घुला हुआ है तो कार्बोनिक एसिड बनाएगा, तो पीएच लो हो रहा है, तो ऑलरेडी पीएच लो है तो जरूरी नहीं कि उसमें और कार्बन डाइऑक्साइड आसानी से घुल पाए। ठीक है, तो इसलिए जरूरी नहीं है कि हर गैस ज्यादा घुलेगी डिक्रीज इन पीएच से, मतलब जब पानी एसिडिक होगा तब सारी गैसें ज्यादा घुलेंगी पानी में, ये सच नहीं है। सो क्लियरली द assertion A is true that at constant temperature solubility of ammonia in water will increase with a decrease in pH, but it is not necessary that solubility of all gases will increase with a decrease in pH. That is, decrease in pH means if the water turns acidic, it is not necessary that all the gases will dissolve more in acidic water. Okay, so answer will be C, that is A is true but R is false. Okay, and I have already explained this calculation. So let's go to question number 6. Match the following processes or events with consequences or links. So I don't know about all of this, but I know two options very
confidently. Itai disease. We all know itai disease is caused by cadmium, excessive cadmium intake. So C has to be matched with 2. And excess nitrate in water causes the blue baby syndrome, in which the skin of babies turns blue after consumption of water having excessive nitrate because of reduced oxygen in blood. तो इटाई डिजीज तो कैडमियम से होता है, तो क्लियरली सी को टू से मैच करेंगे। और जब पानी में बहुत नाइट्रेट होता है और वैसा पानी बच्चे पीते हैं तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है शरीर में और उनका स्किन, उनकी त्वचा नीली पड़ने लगती है, तो उसको ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं। तो डी का जो मैच होगा वो 3 से होगा। तो कौन सा ऑप्शन है जहां डी को 3 से मैच किया गया है और सी को 2 से मैच किया गया है, वो है ऑप्शन बी। तो क्वेश्चन 6 का आंसर होगा ऑप्शन बी। सारे आंसर्स इसमें से सारे मैचेस आपको सही नहीं पता होंगे, लेकिन अगर कोई एक या मैक्सिमम 2 मैचेस आपको सही पता है तो आप देख लीजिए कि वो 2 सही ऑप्शन है। जैसे सी इटाई डिजीज का कैडमियम आपको पता है, सी को 2 से मैच करना चाहिए, तो ऑप्शन बी होगा। तो मैच द फॉलोइंग बहुत आसान हो जाता है इस स्ट्रैटेजी से। अब देखिए, मैच द फॉलोइंग अगेन। मैच द फॉलोइंग केमिकल स्पीशीज विद देयर मेजरमेंट टेक्निक्स। वी ऑल नो दैट DO is measured using Winkler's method. So A has to be matched with 4. So where is A matched with 4? Option A, right? A is matched with 4. Okay. Then this is the correct option. Then B has to be matched with, B is here matched with 1. That is SO2 is measured using Western-Geick method. Then CO, carbon monoxide, is measured using non-dispersive infrared analyzer. And nitrous oxide, nitric oxide is measured using chemiluminescence method. तो ये जो है करेक्ट ऑप्शन है ए। और कौन कौन सा इनमें से जो गैसेस हैं ये किस किस मेथड से मेजर की जाती है, इसको प्लीज आप रट लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में यूजीसी नेट में ये क्वेश्चन कई तरह से पूछा जाता है। सो प्लीज मेमोराइज द करेक्ट ऑप्शन, which gases are measured using which technique, because UGC NET asks this question in multiple types and multiple ways. Again, there's match the following. Pesticides with the purpose. I know that malathion is an insecticide, so A has to be matched with 3. So let's look. Option D, A is matched with 3 here. And this is the correct option. Okay, so malathion is an insecticide. Then metaldehyde is molluscicide. Mollusk मतलब शेल वाले एनिमल, घोंघा वगैरह. Diethyl toluamide, C has to be matched with 4. Insect repellent. And chloronib is a fungicide. D has to be matched with 2. This is the correct option. So this also, please memorize all of this, because this question can also be asked in multiple ways. So ये भी रट लीजिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को कई तरह से पूछ सकते हैं। Question 9. Which of the following is not an advanced oxidation process for the treatment of wastewater? Photofenton process, photocatalytic titanium oxide process, UVH2O process, or acidified potassium dichromate oxidation process? तो acidified potassium dichromate oxidation जो process होता है वो कोई advanced process नहीं है water treatment का, तो option होगा D. Based on the PE value, that is PE means redox potential value, for 4 water samples given below, the concentration of dissolved oxygen shall be highest in. Clearly the PE value, the redox potential, is highest in option B, that is 13.9. So the DO should also be highest in this option B. And the correct option is B. जो redox potential है वो highest तभी होगा जब DO भी highest होगा, और वो होगा B में। और अगर आप जानना चाहते हैं redox potential क्या होता है, तो redox potential का जो range होता है वो होता है यहाँ पे, PE is redox potential varies between -12 to 25. ये होता है redox potential की range. Which of the following actions can be recommended for acidified lakes? जब लेक्स में एसिडिफिकेशन हो जाता है, मतलब पीएच कम हो जाता है, तो कौन सा एक्शन करना चाहिए? क्लियरली लाइमिंग, मतलब कैल्शियम का लाइम का ऐड करना, चूना ऐड करना, ताकि उसका पीएच बैलेंस हो सके. A stream with a flow rate of 0.2 meter cube per second and a chloride concentration of 50 milligram per liter receives a discharge of mine drainage water with a flow rate of 0.05 meter cube per second and chloride concentration of 1500 milligram per liter. The downstream concentration of chlorine is. तो ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन की तरह सॉल्व होगा, मैंने इसको सॉल्व किया है. वंस अगेन प्लीज लुक एट, टेक अ लुक. फ्लो रेट ऑफ द स्ट्रीम का फ्लो रेट कितना है?
0.2 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड, दैट इज 200 लीटर पर सेकेंड। क्यूबिक मीटर को हमेशा लीटर में कन्वर्ट कर देते हैं क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन हमेशा मिलीग्राम पर लीटर में होता है। क्लोरीन का कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्ट्रीम में कितना है? 50 मिलीग्राम पर लीटर। टोटल क्लोरीन इन द स्ट्रीम क्या होगा? टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट इज 200 लीटर इंटू 50 मिलीग्राम पर लीटर दैट इज 10,000 मिलीग्राम। ये होगा क्लोरीन का कॉन्सेंट्रेशन टोटल स्ट्रीम में। फ्लो रेट ऑफ माइन क्या है? 0.05 क्यूबिक मीटर दैट इज 50 लीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्लोरीन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइन क्या है? 1500 मिलीग्राम पर लीटर। टोटल क्लोरीन माइन वाटर में कितना होगा? माइन स्ट्रीम में 50 लीटर जो कि वाटर का वॉल्यूम है इंटू 1500 मिलीग्राम पर लीटर। तो 1 लीटर में 1500 मिलीग्राम है तो 50 लीटर में कितना होगा? 7500 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, तो ऐसे क्लोराइड टोटल क्लोरीन स्ट्रीम में और टोटल क्लोरीन माइन के ड्रेनेज में आपको मिल गया। नाउ डाउनस्ट्रीम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लोरीन क्या होगा? टोटल अमाउंट ऑफ क्लोरीन इन स्ट्रीम प्लस टोटल अमाउंट ऑफ क्लोरीन इन माइन प्लस टोटल अमाउंट ऑफ वाटर इन द स्ट्रीम प्लस माइन। तो टोटल अमाउंट ऑफ क्लोरीन इन द स्ट्रीम क्या था? 10,000 मिलीग्राम और टोटल अमाउंट ऑफ क्लोरीन इन द माइंस क्या था? 75,000 मिलीग्राम डिवाइडेड बाय डिस्चार्ज फ्रॉम द स्ट्रीम दैट इज 200 लीटर यहाँ पे एंड फ्लो रेट ऑफ द स्ट्रीम प्लस फ्लो रेट ऑफ द माइन विच इज 50 लीटर। So this comes to the final calculation comes to 340 milligram per liter. So the correct option will be here. Option C, 340 milligram per liter. इस solution को आप फिर से अच्छे से तसल्ली से देख लीजिए. Look at this solution very clearly, and once you understand this, you can solve all these questions because these questions are commonly asked in UGC NET exam. ठीक है. अगले, BOD of effluent discharge on land for irrigation should not exceed. Okay, तो जो एग्रीकल्चरल लैंड पे जो पानी डिस्चार्ज किया जाता है उसका बीओडी का मैक्सिमम लिमिट क्या होना चाहिए? ये बहुत इजी आंसर है, 100 मिलीग्राम पर लीटर. आंसर इज बी, 13 का बी, 100 मिलीग्राम पर लीटर. उससे ज्यादा बीओडी अगर पानी में हुआ और उसको आपने एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए यूज किया तो जो सॉइल के पोर्स है वो क्लॉग्ड हो जाते हैं और उसको सॉइल सिकनेस भी कहते हैं. सो if you are discharging effluent on agricultural land and if the BOD value is more than 100 milligram per liter, then that kind of water with heavy organic content might clog the pores of the soil, and that is called soil sickness. So BOD of the effluent discharge on agricultural land or any land should not exceed 100 milligram per liter. Okay, when DDT enters the human body, it is water soluble? No. Stored in the bones? No. Processed by enzymes? No. Answer is C, fat soluble and stored in fat tissues. It is a lipophilic compound, DDT. Lipo means fat and philic means loving. So fat loving compound, DDT is stored in fat tissues. Question 15. If a phosphorus limited lake having surface area equal to 80 into 10 to the power 6 meters square is fed by stream with a flow rate 20 meter cube per second that has phosphorus concentration of 0.01 milligram per liter, then the phosphorus loading for the incoming stream will be, and the answer is 15 ka B, 0.2 gram per second. So please look at this question carefully. Here, the surface area of the lake doesn't matter. This data is just to confuse you. Don't care about this data. The flow rate of stream is 20 meter cube per second. Okay, and the phosphorus concentration is 0.01 milligram per liter. Just convert 20 meter cube into liters and then do the calculation. So if 1 liter has 0.01 milligram, then how many milligrams will this amount of water have? That is the basic calculation. तो इसमें जो ये डेटा दिया गया है ना, ये कि सरफेस एरिया ऑफ द लेक ये है, ये डेटा आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया. इस डेटा की इस क्वेश्चन में कोई जरूरत नहीं, ये बस कंफ्यूज करने के लिए दिया गया. फ्लो रेट है 20 मीटर क्यूब पर सेकंड, इसको लीटर में कन्वर्ट कर लीजिए. ठीक है, तो 20,000 लीटर पर सेकंड हो जाएगा और 20,000 लीटर पर सेकंड इसका पानी का वॉल्यूम है और कॉन्सेंट्रेशन है फॉस्फोरस का 0.01 मिलीग्राम पर लीटर. तो 1 लीटर में 0.01 मिलीग्राम फॉस्फोरस है. ठीक है, तो 20,000 लीटर में कितना फॉस्फोरस होगा, यही आपको कैलकुलेट करना है. आंसर होगा ये बी. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 आंसर इज बी, 0.2 ग्राम पर सेकेंड. ठीक है, which form of arsenic is the most toxic? We all know this, arsenic 3+. This is the most toxic form, 16 का A.
आर्सेनिक का सबसे टॉक्सिक फॉर्म ये होता है, आर्सेनिक 3+। ओके, question 17. Nitrogenous biochemical oxygen demand refers to the quantity of oxygen or O2 needed to convert nitrogen to nitrate, nitrogen to ammonium, ammonium to nitrate, or protein to carbon dioxide, hydrogen oxide मतलब carbon dioxide, water and nitrogen dioxide. तो आंसर इज सी, कि जो नाइट्रोजन बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है, बेसिकली जो प्रोटीनेशियस या नाइट्रोजनस मैटर होता है, उसको उसके एंड प्रोडक्ट्स में CO2, H2 और NO2 में ब्रेक करने के लिए जितना ऑक्सीजन चाहिए होता है, वही नाइट्रोजनस बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है. So nitrogenous biochemical oxygen demand is the amount of oxygen required to completely degrade proteins to its end product, that is CO2, H2 and NO2. Question 18. Which of the following so the answer is C. Which of the following protozoa is responsible for waterborne diseases? So all of these protozoa, none of them are very friendly protozoa. But please do remember that histolytica, histolysis means breakdown of tissues. So whenever there is a disease, the tissues break down. So histolytica, Entamoeba histolytica. This is the microbe, this is the protozoa responsible for breaking down tissues, that is causing disease. तो इसमें सभी जितने लिखे गए कोई भी जो नाम है, कोई बहुत बेनिफिशियल नहीं है, कोई बहुत बेनिफिशियल माइक्रोब्स नहीं है. लेकिन जो इंटामोबा हिस्टोलिटिका है ना, हिस्टोलाइसिस मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ टिश्यूज. तो इस माइक्रोब का नाम ही है इंटामोबा हिस्टोलिटिका, मतलब ये टिश्यूज को ब्रेक डाउन करता है. और जब भी टिश्यू ब्रेक डाउन होते हैं तो बीमारी होती है, तभी टिश्यूज ब्रेक डाउन होते हैं. तो आंसर होगा इंटामोबा हिस्टोलिटिका. ये आंसर आपको कभी नहीं भूले, इसलिए मैंने हिस्टोलिटिका को एक्सप्लेन किया है. ठीक है. Question 19. Algal bloom follows a population growth pattern which is J-shaped. Answer is A. Question 20. Given the following parameters of a primary settling chamber, diameter है ये, depth है ये, and average detention time है ये 2 hours. How much water is being treated? तो इसका कैलकुलेशन भी बहुत सिंपल है. पहले तो हम इस जो प्राइमरी सेटलिंग चैम्बर है उसका वॉल्यूम निकाल लेंगे. ठीक है. डायमीटर है 50, मतलब रेडियस कितना होगा 25, और डेप्थ कितना होगा 2.5. तो वॉल्यूम कितना होगा πr²L, मतलब पाई इंटू 25 इंटू 2.5. ये होगा उसका टोटल वॉल्यूम प्राइम सेटलिंग चैम्बर का. ठीक है. इतना पानी वो ट्रीट कर सकता है 2 घंटे में. तो 24 घंटे में कितना ट्रीट करेगा, आप कैलकुलेट कर. जो भी आपका ये वॉल्यूम आया है, इतना पानी ये 2 घंटे में ट्रीट करता है. ठीक है. और 24 घंटे में कितना ट्रीट करेगा, तो आप इस 2 घंटे में इतना, तो 24 घंटे में इसको इस चीज को 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. आंसर होगा 589285. थोड़ा सा अनक्लियर है एक सोल्यूशन, बट आंसर ऐसे होगा. वॉल्यूम है जितना भी डिटेंशन टैंक का, उसको वो 2 घंटे में ट्रीट करता है, उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. आंसर होगा 589285, और वो आंसर है 58928. जिस क्वेश्चन नंबर 20 का ए होगा आंसर. ठीक है. सो आई होप आज जो मॉक टेस्ट हमने सॉल्व किया सब कुछ समझ में आ गया होगा आपको. कुछ भी अगर नहीं समझ में आया या डाउट है, आपको लगता है मैंने शायद सही नहीं बताया, तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताएं. आई होप व्हाट वी डिस्कस्ड टुडे इन दिस मॉक टेस्ट वाज क्लियर टू यू. If there is anything that is not clear, please do let me know in the comments below. Please do like, subscribe and share my videos. Subscribe to my channel for more job updates, free mock tests and free lectures of environmental sciences. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.